Hello dear students, I hope all of you are watching my videos. I hope all of you are doing well, and I'm sure you are watching my videos and making proper notes. So again continuing from the previous video, today we are going to discuss about payload. And payload जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, for example there is a balloon and a shed in a balloon where one or two people are sitting and the balloon is being raised. मतलब वो rise कर रहा है, sorry मेरी इंग्लिश को थोड़ा balloon is rising and one or two people can just have a watch over that particular area. So the principle behind those kinds of balloon which are used to attract tourism, है ना, जैसे बहुत सारी जगह विदेशों में होता है कि ऐसे कुछ बलून्स होते हैं जिसमें लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो उसके पीछे एक प्रिंसिपल है. उस प्रिंसिपल को हम गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं इन दी नेम ऑफ पेलोड. तो let us begin with payload. So payload is defined as the maximum mass a balloon can carry in atmosphere air to desired weight, है ना. For example जैसे ये एक balloon है, balloon में for example hydrogen or helium is being filled and here maybe let us assume this is Prashnik, है ना, Prashnik बैठा हुआ है and here this side Victor Daimari, है ना, Victor Daimari and Prashnik. ठीक है, तो ऐसे दो लोग बैठे हुए हैं, तो the weight comprising this block is known as payload and the balloon which is carrying this payload has got a unique principle which we are going to study about in this video. So first of all I want to compare this balloon and payload with this system. As you know, in case of water, let us assume there is a mass which is going to which we are going to make it sink in the middle. So ये मान लो एक मिड पॉइंट है h/2, है ना. तो इसमें फोर्स कौन कौन सी लग रही है? The force exactly applying on this block is the mg which is in the downward, whereas in the upside buoyant force is being applied, है ना. एक तो ऊपर की साइड buoyant force है, नीचे की साइड mg force है and the medium is water, है ना. तो अब उसी चीज को अगर हम इससे कंपेयर करें तो both are same things but the only difference is the medium. यहाँ पे air is the medium and here water is the medium. Water is more denser in comparison to air, है ना. So obviously the buoyant force are comparatively high, whereas in case of air buoyant force are comparatively low. So if we somehow understand this system, then this system is not that much of complicated. So let us try to understand. Fb यानी force of buoyant, है ना, this is buoyant force which is along the upside, whereas mg is the force applying downward, है ना, due to gravity. So if mg force यानी जो downward force is more than buoyant force, then for sure this block is going to sink. Whereas if buoyant force is more than if buoyant force is more than mg, then for sure this block is going to float in this medium. If both of these forces are same and or equivalent, then this block is going to remain still at that particular level. So the system of this block in this water medium is same as the system of this payload where balloon is the system where the medium is air. Here medium is air, here it is water. So if we want to make this balloon rise, then we have to ensure certain things. If balloon has to rise up in atmosphere air, then its weight should be less than buoyant force, means this force should be less than
पॉइंट फोर्स, तो जितना ही फोर्स ज्यादा होगा उतना ही फोर्स से ओवरकम कर लेगा और सिस्टम विल गोइंग टू राइज, सिस्टम विल राइज। सो total weight should be less than or equal to point force. Now what is point force? Point force should be equals to weight of medium displaced by the balloon. Now this is the most important part. अगर आपने कभी एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हो बचपन में, आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे। सो एक्चुअली उनसे एक राजा थे, राजा, मैं उस छोटी सी कहानी बता रहा हूँ बस। एक राजा थे, तो राजा जो है उन्होंने, वो काफी परेशान थे कि हम जो है गोल्ड वगैरह को कैसे कैसे नापे कि गोल्ड जो है बिल्कुल अच्छा है, यानी कि बिल्कुल प्योरेस्ट है। तो उन्होंने अपने जो उनकी वो होती है कोर्ट जो होती है वहाँ पे सबको बुलाया और उनसे पूछा कि what are the measures so that we can accomplish or we can justify the quality of gold. So Mr. Archimedes came to his court and he was quite bright at that time, तो उनका काफी IQ अच्छा था। तो उन्होंने जो है उनसे बोला कि सर मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं इसमें बताता हूँ कि एक तरीका है कि कैसे, मतलब एक तरीका मैं पूछ के बताऊंगा। तो हुआ क्या कि वो जो है बड़े परेशान होके अपने घर गए, काफी थके हुए थे, 3-4 दिन सोचते रहे, 3-4 दिन सोचे, नहाए धोए नहीं, खाए पिए नहीं, कुछ नहीं, और अचानक जो है उनका मूड हुआ कि चलो नहा लेते हैं, है ना। तो हुआ क्या कि वो जब नहाने के लिए बाथ टब में गए, तो जनरली हमारी कंट्री में तो विदाउट क्लॉथ्स नहाना अलाउड नहीं है और बुरी बात होती है। बट अगर आप थोड़ा उधर जाओ, वो थोड़ा बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, वेस्टर्न लोग, उन्हें ज़्यादा सेंस नहीं होता, तो वो जो है जनरली विदाउट क्लॉथ्स के नहाते हैं। तो वो अपने बाथ टब में विदाउट क्लॉथ्स जो है गर्म पानी करके उसमें लेटे, मतलब जैसे डूबते हैं प्रॉपरली, घंटों भर सोचते हैं उसमें। तो जैसे ही वो अंदर लेटे तो उन्होंने क्या महसूस करा कि वो लेटे और उनके दिमाग में एक बहुत ही ब्राइटेस्ट आइडिया आया, जो कि बड़ी अजीब बात थी। तो उनको समझ में आ गया कि गोल्ड का जो है या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की प्योरिटी कैसे नापी जाए। वो जो है उन्हें तुरंत ही आइडिया आया और वो तुरंत ही भागते हुए गए राजा के पास। अब बाई चांस की बात है कि वो इतना ब्राइटेस्ट आइडिया था कि वो कपड़ा ही पहनना भूल गए, तो मार्केट पे नंगे ही भाग गए, है ना। ये एक छोटी सी कहानी हमारे टीचरों ने सुनाई थी कि वो जो है मार्केट में विदाउट कपड़े भागते हुए गए, सर आई हैव फाउंड दिस फॉर्मूला वगैरह वगैरह कहते हुए। तो राजा के पास गए और बिना कपड़े के जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कि मैं एक चुटकी बता दूंगा कि ये जो है प्योर है कि नहीं है। तो ये बड़ा फनी मूवमेंट था हमारी क्लास में भी, जैसे अभी तुम लोगों को मुंह पे हंसी आ रही है, वैसे हमें भी काफी हंसी आई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर देखो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, कोई अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस है, तो वो किसी मीडियम में अगर वो जाता है तो वो उतना ही मीडियम डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट होता है, जितना उसका वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड है, गोल्ड का मान लो 24 कैरेट इज द प्योरेस्ट गोल्ड। अगर 24 कैरेट का गोल्ड आप किसी मीडियम में डालोगे तो वो उतना ही वेट डिस्प्लेस करेगा जितना उसका 24 कैरेट में गोल्ड का वेट होगा, ठीक है। और अगर उसमें जो मिलावट करते हैं, अगर उसका उतना ही वेट डालोगे पानी में, तो मतलब देखो गोल्ड का वेट अलग है जो प्योरेस्ट है, और जो उसमें मिलाते हैं गिन्नी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, गिन्नी का जो होगा वो भी उतना ही वेट होगा। तो बात ये कि जो प्योरेस्ट गोल्ड होगा और जो प्योरेस्ट गिन्नी होगी, वेट चाहे उनका सेम हो, लेकिन दोनों अलग अलग जो है लेवल जो है वाटर का डिस्प्लेस करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कुछ फाइंड आउट करा। वही प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही यहीं पे लगता है, उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर ये, इसको थोड़ा वैसे समझता हूँ, जैसे कि ये मीडियम है, इसमें वाटर है, मान लो टॉप लेवल तक वाटर है, ठीक है। और आप एक बॉल लेकर आए, वो बॉल का कुछ अपना वेट होगा, ठीक है। आपने इस बॉल को इसमें डाला, तो होगा क्या कि जब बॉल इसमें जा रहा होगा तो इसमें से वाटर जो है फ्लो हो रहा होगा, है ना। जब ये कंप्लीटली अंदर चला गया होगा, यहाँ इस स्टेज पे,
तो ये उतना ही वाटर फ्लो करेगा जितना इसका वेट होगा। जितना इसका वेट होगा ये उतना ही वाटर फ्लो मतलब बाहर निकलेगा। तो अगर हम इस वाटर को किसी तरह से कैप्चर कर लें, यानी एक एक ड्रॉप भी कैप्चर कर लें, तो इसका जो वेट होगा वो एग्जैक्टली इसके वेट के इक्वल होगा। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब वो नहाने बैठे तो उन्होंने देखा उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ जितना उनका रियल वेट था। तो यहाँ से प्रिंसिपल शुरू हुआ और वो आज तक यूज होता है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में कभी कभी यूज होता है। वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं फिर भी। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो बॉयंट फोर्स है, जो ये बैलून है, बैलून पर एक बॉयंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ पर मीडियम है एयर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो बॉयंट फोर्स होगा वो तो होगा, अगर मान लो ये स्टिल पोजीशन पे, तो ये बॉयंट फोर्स और ये वेट जो है सेम होगा, और ये जो वेट होगा ये वेट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा टू दी वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। यानी कि पहले हम उसने जो है वो पानी में ये एक्सपेरिमेंट करा था, यही अगर एक्सपेरिमेंट एयर में करें तो पानी और एयर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डेंसिटी का फर्क है। एयर थोड़ा रेयरर है और वाटर थोड़ा डेंसर है। तो वाटर के केस में भी जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो उसका रियल वेट है, ऐसी एयर के केस में जितना एयर डिस्प्लेस होगा वही उसका रियल वेट होगा इस बलून का। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करा, टोटल वेट ऑफ द बॉयंट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड बाय बैलून। अब वेट ऑफ द मीडियम चाहे वो वाटर में जाए चाहे वो एयर में रहे, तो वेट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून शुड बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ, मतलब इसको कुछ ऐसे लिखा देता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, मींस मान लो इसका वेट है mg, है ना, तो ये mg शुड बी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स अगर वो स्टिल है, और ये जो वेट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। तो इसी चीज को हमने बाहर निकाल लिया है और यहां रख दिया है। बॉयंट फोर्स should be equals to the weight of the medium displaced by the balloon। अब यहाँ पर मीडियम अगर एयर है तो कितना एयर डिस्प्लेस करा होगा, तो जितना ये इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम मान लो v है, और जो एयर की डेंसिटी है यानी डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बैलून, इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ होगा। ये मास किसका है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। तो यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज हियर। बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मीडियम डिस्प्लेस्ड बाय द बलून, हेंस टोटल वेट ऑफ द बलून। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बलून। तो टोटल वेट ऑफ द बलून इज द मास ऑफ द बलून मटेरियल, जो बलून के मटेरियल का जो मास होगा, प्लस मास ऑफ द गैस, व्हाटएवर बी द गैस हैज बीन टेकन हियर, इट्स मास शुड आल्सो बी एडेड, मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड, यानी इसका मास प्लस बैलून का मास प्लस गैस का मास, इतना मास इस सिस्टम का है, और ये मास जो सिस्टम का है दैट शुड बी इक्वल टू द weight of air displaced, and weight of the air is equals to density of air into volume of this balloon. That's all. So I have just used here this thing. So total weight of the balloon is equal to mass of balloon material plus mass of the gas plus mass of the payload into gravity. है ना, mass into gravity is the weight. Now I am going to relate these two things. Mass of balloon material plus mass of the gas plus mass of the payload into gravity should be less than or equal to the mass of air displaced into gravity. यानी कि जो air का mass displace हुआ है उसका multiplication by gravity। अगर ये वाली वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये नीचे जाएगा, और अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा। ये as simple as that। मास ऑफ बैलून प्लस, अब ये देखो ये ग्रेविटी से ग्रेविटी कट गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बैलून। दिस मच एयर हैज बीन डिस्प्लेस्ड। सो दैट इज ऑल। नाउ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी हैव टू
we have to note some points where mass of the material can be ignored if not given. मतलब कि अगर बलून का मास नहीं दिया है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि बलून जनरली थिन होता है काफी, तो इस वजह से हम इग्नोर कर देते हैं। इन जनरल वी अज्यूम कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर। अब इसमें एक और पॉइंट हमें मान के चलना पड़ेगा, अगर ये बलून ऐसे राइज हो रहा है तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द डेंसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट whenever this balloon is going to rise। मतलब जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एयर की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। आपको मालूम है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटने पे डेंसिटी भी क्या होती है, घटती है, बिकॉज़ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अब यहाँ पे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल है, आपको जो एयर की डेंसिटी है वो आपको हर लेवल पे कांस्टेंट माननी पड़ती है, बट एक्चुअल में ये कांस्टेंट होती नहीं है। सो in general we assume constant density of air with altitude, so buoyant force is taken constant with altitude। so simple सी बात है। however the fact is that buoyant force continuously decrease, मतलब ये जो buoyant force ऊपर की तरफ लग रही है ये constantly decrease होती रहती है, because density air की क्या हो रही है, constantly decrease हो रही है with altitude। so I have taken one example, one question है ना, for the find the payload of 100 liter balloon with helium gas, उसमें helium gas भरी हुई है at 1 atmospheric pressure and 27 degree Celsius। तो वो उसका पेलोड जानना चाह रहा है, मतलब कि वो कितना weight of payload this balloon can carry with it। so here it has been given that density of air is 1.3 gram per liter whereas mass of the balloon is 20 gram। मान लेते हैं कि उसने ये वाला मटेरियल का, जो बलून का मटेरियल उसका मास उसने दे दिया है, तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। सो द फार्मूला इज क्वाइट सिंपल, मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ balloon material plus mass of gas in the balloon should be less than or equals to density of air into volume of balloon। so अब यहाँ पर mass of payload हमें निकालना है 20 ग्राम प्लस मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस उसने दिया है, नहीं दिया है, तो मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें Pv nRT यूज करना पड़ेगा। तो n निकाल, अगर हमने n निकाल लिया तो हमें मास की पता चल जाएगा, तो n Pv/RT। तो आपको आगे बताने की जरूरत नहीं है, P is 1 atmospheric, वॉल्यूम इज 100 लीटर एंड R is 0.00821, याद है 0.0821। तो उसकी जगह अगर मैंने आपको बताया था 1/12 भी यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग पर्पस इनटू टेम्परेचर। यहाँ से मोल्स ऑफ हीलियम has been calculated which is 4 gram, hence mass can also be calculated, molar mass into number of moles which is 16 gram। so 16 gram of helium gas is being filled in the particular balloon। so mass of payload equals to ये 1.3 डेंसिटी उसने बोला है कांस्टेंट मान के चलनी है इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, है ना, तो इसको आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 94 ग्राम फाइनली आपका आंसर आएगा। so in the next slide we are going to discuss some more numerical regarding this topic। अच्छा हाँ, so taking one more example, let us assume कि Mr. X अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम क्या है, चलो Mr. X है, ठीक। Mr. X wants to fly, है ना, Mr. X का मन कर रहा है आज मैं ऊपर आसमान नीचे Mr. X wants to fly in the sky, है ना। वो कौन सा एक ऐड भी है, रेड बुल में जो है वो ऐड देते हैं कि रेड बुल पीने के बाद वो उसके पंख लग गए हैं, तो ये रेड बुल वाला नहीं है। so Mr. X wants to fly in the sky with the help of balloons। तो एक्चुअल में तो रेड बुल पी के कोई उड़ता नहीं है, लेकिन बलून लेके Mr. X उड़ने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उनके पास जो एक बलून है, एक बलून उसके अंदर 50 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑलरेडी फिल्ड, है ना, in each single balloon, and this balloon has got hydrogen at 0.5 atmospheric pressure। temperature at that particular instant is 27 degrees Celsius। so if Mr. X wants to fly, who has got weight of 80 kg
then how many balloons he need to carry with him, है ना, कितना बैलून वो अपने साथ ले कि वो 80 किलो का मिस्टर एक्स है और वो उड़ने लगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोल दिया कि assume that density of that of air is 1.25 ग्राम पर लीटर। तो कितने बैलून मिस्टर एक्स को चाहिए कि वो उड़ जाए। तो चलो अब मिस्टर एक्स को उड़ाते हैं। लेट अस assume there is x number of balloons। तो फॉर्मूला सिंपल है, weight of air displaced is equals to mass of whole system, है ना, पेलोड। तो अभी पहले हम देख लेते हैं पेलोड कितना है। तो पेलोड है सबसे पहले तो मिस्टर एक्स अच्छे खासे भारी भरकम 80 केजी के हैं, तो 80 × 10⁻³ ग्राम। फिर एक बैलून में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 50, है ना। ये मानो इधर H2 के हैं 50 मोल्स। तो वेट कितना होगा, वेट होगा मोल्स इनटू मोलर मास, मींस 50 × 2 आएगा 100। तो एक बैलून का मास है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम एक बैलून का मास, और अब मान लेते हैं कि हमने x नंबर ऑफ बैलून्स ले लिए हैं। तो वेट ऑफ मिस्टर एक्स प्लस वेट ऑफ बैलून प्लस mass of balloon material, as I already told you the material mass has, if not given then you can consider it to 0। तो यहाँ पे 0 ले लिया। This value should be less than or equals to how much, density of air into mass of density of air into volume of balloon। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि एक बैलून का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है PV = nRT, PV = nRT। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, nRT/P। तो यहाँ पे मैंने n ले लिया 50 मोल्स, R आपको मालूम है प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है तो 1/12 ले सकते हैं फॉर सॉल्विंग पर्पस। तो 50 × 1/12 × 300 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 0.5। ये तो वॉल्यूम हो गया एक सिंगल बैलून का। अब मिस्टर एक्स एक बैलून से तो उड़ेंगे नहीं, उन्होंने तो x नंबर ऑफ बैलून्स लिए हैं। तो एक बैलून का वॉल्यूम है अगर इतना, मल्टीप्लाई बाय x इतने नंबर ऑफ बैलून का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, है ना। तो इसको अगर आप वैल्यू रखोगे, डेंसिटी की वैल्यू यहाँ रखोगे, इन सबको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ x जो है इसे आप इक्वल कर देना, इक्वल कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी which is approximately 800/30.25, यानी कि 26 आएगा approximately, but 26 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। बट आप फ्रैक्शन में तो बैलून ले नहीं सकते, तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 27 है। तो मैंने आंसर 27 बैलून ऑलरेडी लिख लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ अब हम थोड़ा सा जेई एडवांस वालों बच्चों के लिए, अगर नीट वाले चाहें तो ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस वाले बच्चे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इस तरह की डेरिवेशंस में। तो वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेवल पर लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कितना वेरिएशन आता है ना। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे असल में जो यहाँ पे इन्होंने प्रेशर लिया है, चलो मान लेते हैं ये हमारा है ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और इससे मान लेते हैं कुछ हाइट पे हमने एयर का एक DH मींस जो सबसे छोटी हाइट है, मिनिमम DH हाइट का हमने एक फ्रैक्शन ले लिया है। इस पे नीचे प्रेशर है P1 और ऊपर प्रेशर है P2, और ये हाइट इतनी ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। तो छोटी वाली हाइट में अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इतने से इतने में कितना डिफरेंस आएगा। अगर हम इतने का कैलकुलेट कर लें तो उसको इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो इंटीग्रेट करने पे यहां से लेकर काफी लंबी हाइट तक का प्रेशर वेरिएशन आ जाएगा। तो यहां मैंने लिखा है कि
final pressure minus initial pressure P2 minus P1. Obviously P1 has got more value than P2, so answer will be negative. So P2 minus P1 should be equals to HdG. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि प्रेशर निकालने के लिए P एटमॉस्फेरिक प्लस HdG, अगर आप पीछे बैरोमीट्रिक मेरी वीडियो में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो माइनस dP इक्वल्स टू dH, dH मींस इतना छोटा सा सेक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ दैट जोन इनटू ग्रेविटी। तो इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर का डिफरेंस इतना एक्सर्ट होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया के प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि P नॉट से P तक, यानी कि जो फाइनल होगा तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो माइनस dP इक्वल्स टू dH dG। अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ PV इक्वल्स टू nRT, कंसीडरिंग एयर टू बी एन आइडियल गैस, जबकि एयर आइडियल गैस नहीं होती, एयर इज अ रियल गैस। फिर भी हमें कुछ कंसीडरेशन करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि एयर आइडियल गैस है, तो PV इक्वल्स टू nRT यूज करेंगे। इसी को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, PM इक्वल्स टू BRT भी यूज कर सकते हैं, आपको मालूम है कैसे करना है। तो माइनस dP, यहाँ पे माइनस dP इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये रहा डेंसिटी कहां गया, ये ग्रेविटी है, ये dH है, dH ग्रेविटी। डेंसिटी की जगह में क्या लिख सकता हूं, PM अपॉन RT। देखो PM अपॉन RT मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं, देखो माइनस dP अपॉन P, ये P इसके नीचे आ गया, माइनस dP अपॉन P। इसको इंटीग्रेट करूंगा P नॉट से, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे प्रेशर है वहां से लेकर जो पर्टिकुलर हाइट तक जो प्रेशर होगा T तक, इसे इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। माइनस dP अपॉन P इक्वल्स टू क्या बचा, mg अपॉन RT, और ये बचा dH। dH क्या है, हाइट 0 से लेकर h तक। तो आपको पहले भी मैंने कराया है कि अगर माइनस dP अपॉन P यानी dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा ln x अपॉन x। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ln P नॉट, आपको बीच का स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू mg अपॉन RT इनटू h। ये 0 से h है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये h आ जाएगा। अब अगर हम इस ln को इधर लेकर जाते हैं, ये ln वैल्यू ये अगर इधर गई तो ये वाली टर्म जो है पावर e की पावर बन जाती है। तो देखो p कुछ ऐसा हो जाएगा, p अपॉन p नॉट है ना, ये ln इधर लेकर गया तो ln अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ln e की पावर mgh अपॉन RT जाएगा। देखो e की पावर माइनस mgh अपॉन RT, और फर्दर इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो p इक्वल्स टू p नॉट e की पावर माइनस mgh अपॉन RT बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमने कुछ कंसीडरेशन करे हैं, फॉर एग्जांपल मास ऑफ एयर, ग्रेविटी, जबकि ग्रेविटी भी हाइट के अक्रॉस चेंज होती है, टेम्परेचर भी अक्रॉस एल्टीट्यूड पे चेंज होता है, और मास ऑफ एयर भी चेंज होता है। फिर भी हमने उसे हाइपोथेटिकली एज्यूम करा है कि दैट इज कांस्टेंट। तो अब जो इन चीजों को कांस्टेंट मानने के बाद जो प्रेशर का वेरिएशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा। तो प्रेशर, अब इसी को हम डेंसिटी की वे में अगर डिराइव करें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो वही चीज d अपॉन d नॉट इक्वल्स टू p अपॉन p नॉट इक्वल्स टू e की पावर माइनस mgh अपॉन RT। अब इसको देखो ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो ऐसे देखो ये प्रेशर वर्सेस हाइट का ग्राफ है, हाँ प्रेशर वर्सेस हाइट, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस। ये तो इनिशियल है, तो ये वाला जो इंटरसेप्ट है दिस इज p नॉट एंड p वर्सेस हाइट का ग्राफ आप समझ ही सकते हो कैसा आ रहा है, कुछ इस तरह से, जो x एक्सिस पे कभी जाके मीट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इसकी स्लोप जो है नेगेटिव हो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कुछ इस वे में फॉर्म होगा, जबकि हमने प्रेशर क्या माना है, हाँ प्रेशर हम कांस्टेंट मानते हैं, जबकि प्रेशर क्या होता है कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। सो आईटी एडवांस वाले बच्चे थोड़ा इस डेरिवेशन पे ध्यान दें। अब हम अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है।